audience, which includes some prominent parliamentarians as well, present amongst us, for the release of the book titled Ambedkar and Modi, Reformers, Ideas, Performers, Implementation. It's our honor to welcome our chief guest, former President of India, Sri Ramnath Kovindji. We also welcome former Chief Justice of India, Justice K.G. Balakrishnan, our guest of honor, Honorable Minister of Information and Broadcasting, Sports and Youth Affairs, Sri Anurag Thakur Singh Ji, Sri L. Murugan, Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. We welcome Sri Hitesh Jain, Director, Blue Craft Digital Foundation, the very force behind this book. Ladies and gentlemen, the book Ambedkar and Modi chronicles Dr. Ambedkar's influence and its far-reaching impact on making of new India, while reflecting upon multitude of contributions made by Dr. Ambedkar in the nation-building process. The book studies the points of intersection of India's development story under Prime Minister Modi and also the ideals of Dr. Ambedkar. And indeed, you all will agree, ladies and gentlemen, that it is a special occasion today because we have the luminaries with us today who in their individual capacities have contributed in making of aspirational Bharat, New India, and their unflinching belief in powering social and economic mobility. Now, as a mark of our gratitude to our esteemed guests of honor and our chief guest, we first start with the felicitations, please. I request Sri Anurag Singh Thakur, Minister of Information and Broadcasting, Sports and Youth Affairs, to present sapling and a shawl to our chief guest, former President of India, Sri Ramnath Kovind. Ladies and gentlemen, please join your hands. I now request Sri L. Muruganji to present sapling and shawl to our guest of honor, former Chief Justice of India, Justice K.G. Balakrishnan. Ladies and gentlemen, please put your hands together. Thank you. And I now request Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, Sri Vikram Sahai Ji, to present shawl and sapling to Honorable Minister, Sri Anurag Thakur Singh Ji. Okay. And Vikram sir will also felicitate MOS INB, Sri Murugan Ji. Thank you very much, sir. And Vikram Sahai, Joint Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, will also present sapling and shawl to Hitesh Jain, Director, Blue Craft. Once again, let's have a round of applause. Okay. Vikram Sahai sir may kindly felicitate Anurag sir. Presenting shawl and sapling to Honorable Minister of Information and Broadcasting, Anurag Singh Thakur. Thank you. Thank you, Mr. Sahai. Thanks. Ambedkar and Modi, Reformers, Ideas, Performers, Implementation is one of its kind works that extensively deals with ideas and interventions of Baba Sahib Ambedkar way back then and the way they continue to define the current government, the Modi government's governance paradigm.
Now, this book, ladies and gentlemen, is spread over 12 chapters. It makes up an interesting reading on Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution to the making of India as we know today. And the book also delves into varied subjects of scholarly perspective. And now, I request Honorable Minister of Information and Broadcasting, Shri Anurag Thakurji, to reflect upon this book, to share his thoughts, welcome address, and introductory remarks. Yes, we can put our hands together once again. Thank you so much. भारत के पूर्व राष्ट्रपति परम आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस आदरणीय श्री बालकृष्णन जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रिय डॉक्टर मुरुगन जी, डायरेक्टर ब्लू क्राफ्ट श्री हितेश जैन जी, उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय अधिकारी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित विशेष तौर पर सभी प्रिय भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये अपार हर्ष का विषय है कि अंबेडकर एंड मोदी इस पुस्तक का विमोचन आज किसी और के कर कमलों से नहीं बल्कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कर कमलों से हो रहा है और हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मित्रों, अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स, आइडियाज़ और परफॉर्मर्स एग्जीक्यूशन, ये अपने आप में अंबेडकर जी के विचारों पर प्रकाश भी डालता है और किस तरह से मोदी जी ने उनको लागू किया और आम आदमी के जीवन में किस तरह से बदलाव लाने का काम किया है। यानी बाबा साहब ने जो समाज के लिए सोचा उसको मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में कैसे कर दिखाया, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं बल्कि भीमराव अंबेडकर जी के साकार होते सपनों का एक ऐसा दस्तावेज है जिसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भगीरथी प्रयासों से धरातल पर उतार कर दिखाया है और ये साफ सिद्ध करता है कि जहां चाह वहां राह है। भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब के विचारों ने हमारे राष्ट्र की नींव रखी है और बाबा साहब का संपूर्ण जीवन जो है वो समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है। वह दलितों, पिछड़ों और वंचितों के महानायक थे। उनके जीवन मूल्य और सिद्धांतों का आधुनिक भारत के निर्माण पर व्यापक प्रभाव है। देश को जब आज़ादी मिली तो प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना थी कि कैसे समाज में विसंगतियों से दूर किया जा सके, कैसे बहुजनों को, वंचितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, विकास की गंगा सब तक पहुँचे और भारत एक विकसित देश की ओर कैसे अग्रसर हो। ये इनके विचार थे और कल्पना भी थी। दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद कई दशक बीत जाने तक कई सरकारें आई लेकिन उस दिशा में ज़्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन 2014 में जनता के आशीर्वाद से, पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया की महाशक्तियों के साथ कदम ताल कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन वंचितों, पीड़ितों को सशक्त करने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय पहले संबोधन में ही साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों की होगी और उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होगी। उन्होंने वायदा किया था कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलेगी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से अलग नहीं है। तब से अब तक इन 8 सालों में मोदी सरकार का हर फैसला
हमारी नीतियां और हमारे कार्यक्रम इसी लक्ष्य से प्रेरित हैं। और मैं धन्यवादी हूं ब्लू क्राफ्ट का कि उन्होंने गहन शोध और प्रमाणिकता के साथ सारे तथ्यों को अंबेडकर एंड मोदी नामक की इस पुस्तक के माध्यम से संकलित करने का पुनीत कार्य किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी मानते थे कि औद्योगिक विकास वंचित समाज के लिए मुक्तिदाता साबित होगा। और आज मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत हो, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हो, ये सब उसी दिशा में काम है जहां पे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी विजन को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और सरकार काम कर रही है, वहीं पर हमारे उद्यमियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब तक की सरकारों में ना इतनी दूरदर्शिता थी और ना ही इतनी इच्छा शक्ति। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर वोट बटोरना और मूर्तियां बनाने का काम तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उनका जो विराट विजन था, देश और समाज खासतौर से वंचित वर्ग के उत्थान के लिए जो दृष्टिकोण था, उसको कदम दर कदम अगर कोई जमीन पर लागू कर रहा है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी भी है और जिसने इस अभाव को देखा हो वही सशक्तिकरण की अहमियत को समझ सकता है। बाबा साहब ने सामाजिक कुरीतियों का समाधान शिक्षा को बताया था और आज मंच पर हमारे सामने उसका जीता जागता उदाहरण है कि अच्छी शिक्षा के कारण ये जो कुरीतियां हैं इनसे भी मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। और आज के राष्ट्रपति जी को देखें या पूर्व राष्ट्रपति जी को देखें, बाबा जी के सपनों को साकार होता आज का भारत ये देख रहा है। मोदी जी की सरकार बाबा साहेब के विचारों को सार्थक करते हुए विश्वास शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु कार्य कर रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में दिखाती है कि 34 वर्षों के बाद अगर देश में नई शिक्षा नीति आई है तो उसमें अपने आप में दिखाया कि कैसे मातृभाषा को कैसे प्राथमिकता दी गई है। और जो बाबा साहब के विचार थे कि वंचितों को, पीड़ितों को शिक्षा दिलाकर, स्किल्स दिलाकर स्वरोजगार के अवसर और आगे बढ़ाने का काम करना है, यही बाबा साहेब का जीवन मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास मॉडल के मूल में रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में हमारी सरकार प्राथमिक, उच्च शिक्षा व चिकित्सक शिक्षा को तीव्र गति से बदल रही है। अगर आप पिछले 8 वर्षों में देखें कितने ही IIT, IIM, NIT से लेकर IIIT देश में बने। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या को भी लगातार लगभग 204 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज पिछले 8 वर्षों में नए खोलने का काम किया गया, जो शायद कभी 8 वर्षों में इतना ना हुआ हो। सीटें जो 78,000 थी उसको बढ़ाकर 1,06,000 से ज़्यादा करने का काम किया गया। आज हमारे देश में जो डॉक्टर्स की कमी थी उसको पूरा करने का काम किया जा रहा है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उच्च शिक्षा से लेकर अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जा रही। अगर मैं मूलभूत सुविधाओं की बात करूं तो हजारों गांव थे जहां बिजली नहीं थी। पिछले 8 वर्षों में हर गांव और हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा कर लिया है और LED के बल्ब देकर बिजली बचाने का काम भी किया है। बैंक खाता 45 करोड़ लोगों का खोलने का काम किया, तो आपदा के समय गरीब बहनों के खाते में 31,000 करोड़ रुपए की मदद डालने का काम एक बटन से किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भीम प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं, भारत इंटरफेस ऑफ मनी, आज आप UPI भीम की बात करें तो दुनिया भर के लिए उदाहरण के रूप में डिजिटल पेमेंट सिस्टम भारत का बना है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहा है। वहीं पर उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 12 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया, 3 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान बनाने का काम किया। आप कल्पना कीजिए, जिस बहन के दिन की शुरुआत पहले खुले में शौच करने जाने के लिए सूर्योदय से पहले होती थी, जंगल में लकड़ी ले जाने के लिए और चूल्हा जलाने के लिए, फिर धुआं खाने के लिए होती थी, आज उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है। जिसको पानी लाने के लिए दिन में कई घंटे मुशक्कत करनी पड़ती थी, कभी कतार में लग के, कई बार कुएं पे जाकर, कई बार नदी के किनारे जाकर, अगर उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कोई लाया है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को
साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर करने का काम किया है। हर घर को नल, नल से जल देने का काम हो, या फिर महिला विकास के बारे में मोदी जी ने कहा कि वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ये सारे जो मैं बातें कर रहा हूं, ये सारे महिलाओं को ही केंद्र बिंदु में रखकर किया गया है। उनके ही जीवन में बदलाव लाया गया, लेकिन उनको ही महिला सशक्तिकरण करने के माध्यम से किया गया है। मातृत्व अवकाश की हम बात करें, मैटरनिटी लीव की बात करें तो 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का काम किया। महिलाओं के नाम संपत्ति करने का काम किया। मुद्रा लोन भी अगर आप देखेंगे तो मुद्रा लोन में बगैर गारंटी के ऋण देने का काम भी किया। और आज SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग को ऐसे 34 करोड़ खाता को 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए, तो बगैर गारंटी और बगैर कोलेटरल गारंटी के दिए, तो मोदी सरकार ने दिए। उज्ज्वला योजना में, अगर उज्ज्वला योजना में SC, ST लाभार्थी देखने तो 3 करोड़ 10 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए और 1 करोड़ 31 लाख पक्के मकान SC, ST के परिवारों को दिए गए। स्वरोजगार योजना के माध्यम से लगभग 80,000 लोगों को जो मैला उठाते थे उनको 27,800 करोड़ रुपए की मदद करने का काम किया। तो SC, ST के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति में दोगुनी वृद्धि दी और इसके माध्यम से भी 3,600 करोड़ रुपया से बढ़ाकर 7,700 करोड़ रुपया करने का काम किया है। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर मिले और लोग उद्यमी बन सके, तो SC, ST को लगभग 5,300 करोड़ रुपए का लाभ यहां से भी दिया है। नवाचार करने के लिए उद्यमियों की मदद के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई है। यहाँ पे इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का काम किया। PM दक्ष योजना में भी 2,27,000 SC युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देने का काम भी किया है। ऐसे न जाने हजारों काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए, जो स्किल डेवलपमेंट से स्वरोजगार की यात्रा थी। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी SC, ST वर्ग को ज़्यादा लाभ देने का काम हुआ। मैं तो ये कह सकता हूँ, जो लोग 60 वर्ष में नहीं कर पाए वो 8 साल में करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। स्वनिधि योजना हो तो इसमें भी हमारे रेहड़ी वालों को 10-10 हज़ार से लेकर 50,000 रुपये तक बगैर गारंटी के पैसा दिया और इसमें इंटरेस्ट माफ़ करने की सुविधा भी दी। आत्मनिर्भर भारत को बल देते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई। बुलेट प्रूफ जैकेट की डिमांड उसको तो पूरा किया ही, यहाँ पर हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करके भारत की ज़रूरत को पूरा करने के साथ साथ दुनिया भर को सप्लाई करने का काम भी अब आयातक की बजाय निर्यात करने का काम भारत डिफेंस के क्षेत्र में कर रहा है। ये भी आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का कर रहा है। 2014 से पहले श्रम संहिताओं को और प्रक्रियाओं को आम जनमानस की समझ से बाहर थी और इसको हमने 44 जटिल श्रम कानूनों को सावधानी पूर्वक 4 व्यापक श्रम संहिताओं में बांटने का काम किया है। कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, इसको हमने पिछले 1 साल पहले इसका पूरा किया। और ESI वेतन सीमा को भी 2014 से पहले मात्र 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज मैं आपके सामने बाबा साहब की पंक्तियां दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, यदि आप एक सम्मानजनक जीवन जीने में विश्वास करते हैं तो आप स्वयं सहायता में विश्वास करते हैं, जो सबसे अच्छी मदद है, आई अनकोट। ये उसी दिशा में स्वयं सहायता समूह हो या आत्मनिर्भर भारत हो, दोनों ही काम उस दिशा में है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को 20 लाख रुपए तक की मदद बैंकों से ऋण बगैर किसी गारंटी के मोदी सरकार ने देने की शुरुआत की और आज करोड़ों बहनें अपने पांव पर खड़ी है और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। मित्रों, अनुच्छेद 370-35 से ये वर्षों से मांग थी कि इसको हटाया जाए और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सदा के लिए अनुच्छेद 370-35 से मुक्ति भारत को दिला दी। इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये साबित हुई है कि वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे भाई और बहनों को राजनीतिक आरक्षण प्राप्त हुआ। बाकी जो लाभ हुए उसके अलावा जो राजनीतिक आरक्षण प्राप्त हुआ इससे पहले नहीं था। ये भी 370 और 35 से धारा हटने के बाद ही हुआ है। बाला साहेब
संघवाद यानी कि फेडरलिज्म के भी मूल सिद्धांत के प्रतिपादक थे और बाला साहब की तरह ही मोदी जी की सरकार भी देश और संविधान को किसी भी राजनीतिक दल से आगे कार्य करती है। मैं तो ये कहूँगा सबसे बड़ा उदाहरण हम सबके सामने जीएसटी है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स पोस्ट इंडिपेंडेंस। और जीएसटी कलेक्शन पर या जीएसटी पर जो बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते थे, आज उसका आपदा के समय भी सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिलता है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की कभी टैक्स कलेक्शन नहीं होती थी, वो भी बढ़कर 1,40,000 करोड़ 1,63,000 करोड़ तक पहुंचने का काम हुआ। तो ये भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा नमूना देश के सामने है। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बाला साहब की दूरदर्शिता से प्रेरित होकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्याणकारी योजनाओं के कारण पिछले 8 वर्षों में महिलाओं के, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सशक्त बनाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी सरकार उनके उत्थान की दिशा में इसी प्रकार से कार्य करती रहेगी। मित्रों, अगर मैं ये ना कहूं कि पंचतीर्थ की कल्पना कैसे आई, बाबा साहब ने तो वंचित और पीड़ितों के उद्धार के लिए काम करने की बात अपने कानून मंत्री रहते भी और संविधान में भी कही, लेकिन सबसे ज्यादा अपेक्षा किन की हुई? उन्हीं की हुई, राजनीतिक तौर पर भी, और हर तरह से उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया। यहां तक कि भारत रत्न में उनको 30 वर्ष के बाद मिला, जब भाजपा समर्थित वीपी सिंह जी की सरकार थी तब मिला। तेल चित्र भी अगर उनका पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लगना था तो उसके ऊपर भी किस तरह से हंसी मजाक उस समय की सरकारों ने, जो लंबे समय तक सत्ता में रही, उन्होंने उड़ाया था। लेकिन मोदी जी की सरकार बनी तो पंच तीर्थ को बनाने का और उसको पूरा करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है मित्रों। और मैं तो यही कहूंगा, अगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो वो इस पद तक नहीं पहुंच पाते, और ये उनके संविधान की ही ताकत है कि चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी हो, या आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हो, या बाकी लोग हों, ये संविधान की ताकत के कारण ही देश के उच्च पदों तक पहुंचने का काम हुआ है। और जो पंचतीर्थ की मैं बात करता हूं, चैत्य भूमि स्मारक, जो इंदु मिल की जमीन वर्षों तक नहीं मिलती थी, वो भी मोदी सरकार में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने लेने का काम किया। और वहां पर महाराष्ट्र के 40,000 गांव से पौधे मंगवाने का काम किया, देश के हर जिला से पौधे मंगवा के हर राज्य से काम किया। और वहां पर आज हरियाली के बीच में शांति स्थल बनाने की शुरुआत हो रही है। 26 अलीपुर रोड को महापरिनिर्वाण भूमि पर संविधान पुस्तक के डिजाइन का अनूठा स्मारक बनाने का काम किया है। और यही नहीं, शिक्षा भूमि पर स्मारक भी किंग हेनरी रोड पर बंगलो इंग्लैंड में बनाने का काम किया, जहां पर अंबेडकर मेमोरियल और इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर बनाने का काम किया। जन्मभूमि स्मारक मध्य प्रदेश के महू में ग्राम उदय से भारत उदय का शंखवाद किया। आज टूरिज्म के मानचित्र की एक कैटेगरी लिस्ट पर यह आता है। और दीक्षा भूमि भी इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर नागपुर में बनाने का काम किसी और ने नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही किया है। जो 60 में नहीं हुआ वो 8 में करने का काम किया है। 22 साल से लटके अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जो 15 जनपद पे बना है, क्योंकि 10 साल तो मैं ही 14 जनपद पे रात देखता था कभी काम शुरू होगा, ये भी मोदी सरकार ने 2 साल में बनाने का काम किया। 10,000 किताबें हैं, 2 लाख से ज्यादा ई बुक्स हैं, और बड़ी लाइब्रेरी बनाने का काम किया है। संविधान दिवस 26 नवंबर किसी और ने नहीं, 125वीं जयंती पर मोदी जी की सरकार ने ही शुरुआत करने का काम किया। और 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती पर अवकाश की घोषणा भी की तो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ही की। और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अंबेडकर जयंती के दिवस पर 14 अप्रैल को वहां पर भी समारोह होता है, तो ये भी मनाने का काम जयंती का किया है। तो ये भी मोदी जी की सरकार के समय शुरुआत हुई। मोदी सरकार में ही अनुसूचित जाति से जुड़े हुए मंत्री 10% से ज़्यादा संख्या उनकी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी है तो उनकी सरकार में बाबा साहब के जो सपने थे, जो सोच थी, उसको साकार करने का काम किया। और मैं बाबा साहब ने जो कहा था एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि भारतीयों के रूप में
हमारी वफादारी किसी भी प्रतिस्पर्धा वफादारी से थोड़ी सी भी प्रभावित हो, चाहे वे वफादारी हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से या हमारी भाषा से उत्पन्न हो, मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहले भारतीय हों, आखिरी भारतीय हों और कुछ नहीं बल्कि भारतीय हों। और इसी आशा के साथ कि आप पुस्तक पढ़ेंगे भी और इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, मैं एक बार फिर आप सबकी ओर से पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी का, पूर्व न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आदरणीय जस्टिस बालाकृष्णन जी का और सभी यहाँ प्रमुख भाई और बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप आए, आपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भीम। धन्यवाद अनुराग जी। Ladies and gentlemen, the force behind this book, Ambedkar and Modi, is Bluecraft Foundation with a vision statement, take India forward one craft at a time. And with this underlying thought, Bluecraft has attempted to induce that sort of transformation and change in mindset through their works, through their campaigns, through their policy publications, through their policy papers. And this particular book is not only another feather in their cap, but it is touted as a book which has many firsts to its credit. I now invite Shri Hitesh Jain, he is Director, Bluecraft Digital, to share his thoughts about the very idea of the book and how it actually came into being, and also about the foundation. Shri Jain. Thank you. Former President of India, Shri Ramnath Kovind ji, former Chief Justice of India, Justice K.G. Balakrishnan ji, Honorable Union Minister for Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji, Honorable Union Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan ji, ladies and gentlemen. Today's event, the book release of Ambedkar and Modi, Reformers' Idea, Performers' Implementation, is a matter of immense pride and honor for us at the Bluecraft Digital Foundation. When we incorporated Bluecraft Digital Foundation, it was incorporated with a vision of empowering Indian society by creating awareness and implementing out-of-box ideas for social welfare. Now, when it comes to social welfare, we can all unanimously agree that if there is one individual who tirelessly strived for social welfare, it is none other than Baba Saheb Ambedkar. Be it as the architect of our constitution or as a crusader for social justice, even in today's day and age, Baba Saheb's legacy continues to live on. Ladies and gentlemen, we cannot confine the legacy, the rich legacy of Baba Saheb only as a crusader of social welfare or architect of constitution. Baba Saheb's legacy is a rich legacy, and when we speak about the foundations of modern India, Baba Saheb's legacy has made immense contribution when we speak about the foundations of the new India. Over the years, several political parties and leaders have attempted to pay homage to Baba Saheb's legacy. But I agree, ladies and gentlemen, this house will agree with me that it is only the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has turned Baba Saheb's vision into reality. Now, this can be credited to the fact that both Baba Saheb and Shri Modi ji were not born with a silver spoon, and they were introduced to the hardships of life at a young age. Both these leaders have taught us that it is important to be Kamdar and not a Namdar. There are several striking aspects in various sectors which were Baba Saheb's idea but have been fulfilled by Shri Modi ji's vision. For example, Baba Saheb often spoke about industrialization being the solution to rescue people from the vicious cycle of the poverty. With the focus of Atmanirbhar Bharat and Make in India, this vision of Baba Saheb is being turned into reality. Or for example, not many are aware
of Baba Saheb's contribution towards the formation of Central Technical Power Board, which we now know as Central Electric Authority. Baba Saheb often stressed on the importance of abundant electricity in India. As you are aware, when Prime Minister Modi ji was sworn in and elected as the Prime Minister of India, and he received an opportunity to serve the people of India, over 18,000 villages were not electrified. But as of today, each and every village in India is electrified. Even when it comes to social empowerment and upliftment, same be it in his focus on social reforms, affirmative action, or his faith in legal reforms. Similarly, we see that even Modi ji's call for action, which focused on using technology as a means to further social empowerment, has greatly impacted our society. Amongst other things, the success of Swachh Bharat Abhiyan was all for to see. However, what truly shapes up the legacy of Baba Saheb and the Prime Minister Modi ji is that while Baba Saheb was known as the crusader for the last mile, or for the crusader for the man at the last mile, the Prime Minister Modi ji will always be credited for the last mile delivery of welfare schemes. Before I conclude, I also would like to take the opportunity to thank the music maestro who is not amongst us today, Shri Ilayaraja ji, for graciously agreeing to write an insightful foreword. And I also like to take the opportunity to thank our publishers, Prabhat Prakashan, for bringing this book to the life and publishing it. I hope this book will make an interesting reading and it will highlight the rich contribution of Baba Saheb's legacy on various sectors in India. Thank you very much. Thank you very much, Hitesh ji. And now, ladies and gentlemen, Bluecraft has put together this audio visual, AV. It's a short film which sort of gives us a glimpse as to what is to be expected in the book. Can we please play the AV? Strong people do not put others down, they lift them up. A Yug Purush unlike any, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar's life and legacy have inspired millions. Imbibing the ideas and the ideals of Baba Saheb Ambedkar, Prime Minister Narendra Modi is unshackling India to deliver on its true potential. Exploring the convergence of India's developmental journey under Shri Narendra Modi and Baba Saheb's vision of India. The book, Ambedkar and Modi, Reformers' Ideas, Performers' Implementation, offers insights and perspective on how India is moving toward realizing the dreams of one of its greatest sons. आजादी की लड़ाई में हमारे लाखों करोड़ों स्वाधीनता सेनानियों ने समरस समावेशी भारत का सपना देखा था। उन सपनों को पूरा करने की शुरुआत बाबा साहब ने देश को संविधान देकर के की थी। आज उसी संविधान पर चलकर भारत एक नया भविष्य गढ़ रहा है, सफलता के नए आयाम हासिल कर रहा है। Prime Minister Narendra Modi declared 26th November as Constitution Day and created Panch Tirthas to celebrate Dr. Baba Saheb Ambedkar's life. Birthplace in Mao, Madhya Pradesh. London, where he stayed while studying in the UK. Diksha Bhumi in Nagpur, Maharashtra. Mahaparinirvan Sthal in Delhi. Chaitya Bhumi in Mumbai, Maharashtra. Presented by Bluecraft Digital Foundation, Ambedkar and Modi. Reformers' Ideas, Performers' Implementation features 12 chapters. Dr. B.R. Ambedkar's legacy and Modi's mission. Industrial growth, a social liberator. Labor rights in Dr. B.R. Ambedkar and Modi era. Development through self-reliance. New infrastructure for new India. Urbanization.
Powering social and economic mobility. Jal Se Hi Jeevan. How drinking water is transforming lives. Waterways as pathways of development. Education, the great social leveler. Social empowerment through development for all. Gender equality, empowering women. Team India, building a nation. The book reflects Dr. Ambedkar's vision and how Prime Minister Modi's epoch-making reforms have, for the first time, truly empowered the marginalized by ensuring not just basic necessities like water, gas, electricity, and housing for all, but also by providing new age tools of empowerment like affordable internet, mobile phones, business loans, and social justice. Dr. Ambedkar's crusade for the last mile is being met by PM Modi at breakneck speed. Dr. Ambedkar always championed the cause of equal rights for women. PM Modi's decision to raise the marriageable age of girls, providing them greater access to education and vocational opportunities, would have made Baba Saheb proud. Ambedkar and Modi, reformers' ideas, performers' implementation, delves into the intersecting lives of two of India's Karma Yogis, who have improved millions of lives. And ladies and gentlemen, now for the special address by Justice K.G. Balakrishnan, former Chief Justice of India, and our guest of honor. Sir. His Excellency Sri Ramnath Kovind, the former President of India, Sri Anurag Singh Thakur, Honorable Minister for Information and Broadcasting, Youth Affairs and Sports, Dr. L. Murugan, Honorable Minister of State for Information and Broadcasting, Mr. Hitesh Jain, the Director of the Bluecraft Digital Foundation, Honorable Ministers, Secretaries, government officials, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. About the book and its contents, Mr. Anurag Thakur has explained how the great ideas of Dr. Ambedkar have been put in practice by the Prime Minister. And series of discussions were made by one of the greatest intellectual of India, Dr. Ambedkar. He has written, he has not only spoke, he has written, and his complete work is available in English and Marathi and other languages. So whatever he has written is available, and about the constitutional points of view also, the various discussions made in the Constituent Assembly that are also available. So the ideas about education, industrialization, empowering a woman, all matters he has expressed his views, and how the India should move forward. About industrialization, he said the fragmentation of agricultural land is not proper. The agriculture production, that is not sufficient. We should go for industrialization, and how the industrialization has worked, and now electronics, various items, all manufactured in India. That is something which is some of the information is startling. That is we are some 13,000 crores of mobile phones are exported from India. It is something that is how the industrialization and the production is being made. And the education, Ambedkar believed that education is the
one of the greatest social leveler. He advised, he was a reformer of the Dalit community, who he said that the food, the dress, or the other facilities are not sufficient. One should have education. Then only we would be able to shed this inferiority complex and it will come up in life. So education was given prime importance, and that too was in modern India. The IITs were started, IIM was started, the aims, 14 aims are going to be started in India. So these are all great changes that are taking place in India. The empowerment of women, then the various series of the production, the electricity. We mainly depended on thermal power. That is, 68% of our power was by burning coal. But that is now the electricity, how the electricity could be produced, and the grid is created. All changes have taken place, and every village is given being given the power supply. So the new infrastructure development, education, and labor laws also. It is whenever we talk of industrialization, we should talk about labor laws also. Labor laws are codified, the minimum wages have been increased, the security of women in the industrial sector is protected. They are given more leave, more maternity facilities. All these are very, very important for a country, a vast country like India. So these were the essence of thoughts extracted from the ideas of Dr. Ambedkar. So that was put in practice. That is how the India is moving forward. So that is something is very, very important, and this book will contain series of facts about how these developments have taken place, how these developments are being done, the industrial growth, social development, all these facts are given, and I feel that everyone should they carefully go through. Some books are only just simply read, but this book, I feel you should carefully read, understand and digest, and then only they will be able to know what is India, how India is moving forward. So I am very happy that I could participate in this function as this launching of this book, and I hope this will reach you, and do your best, and I wish all good wishes to all of you, one and all of you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Justice Balakrishnan ji, for sharing such a deep insight with us and kind of explaining how this book is also a careful study of the trajectory of Prime Minister Modi's life and Dr. Ambedkar's legacy. And now, ladies and gentlemen, now is the moment when we look at the formal launch of the book. And before we move further, I request Akhilesh Mishra. Akhilesh Mishra ji, CEO Blue Craft Foundation, to please come on the stage. And I also request Prabhat ji, CEO Prabhat Prakashan, to kindly come on stage. Prabhat ji. And now, ladies and gentlemen, I request former President of India, Shri Ramnath Kovind ji, to do the honors, please. And I also request all the dignitaries on the dais to please join. Please put your hands together, ladies and gentlemen. Thank you, Honorable Former President. Thank you, sir. Thank you, all the dignitaries.
And now I request Honorable former President Shri Ramnath Kovind ji for his much-awaited address. Sir. ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संकलित जिस पुस्तक का आज विमोचन हुआ है, अंबेडकर एंड मोदी, रिफॉर्मर्स आइडियाज, परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, इसके विमोचन के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित बहुत सारे केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण, जनप्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, लेकिन जो मंच पर बैठे हुए हैं उनका मैं संबोधन बाद में करना चाहूँगा। मंच पर उपस्थित हैं हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री एल मुरुगन जी, पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री के.जी. बालाकृष्णन जी, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के निदेशक श्री हितेश जैन जी। सबसे पहले मैं केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह और उनकी पूरी टीम को इस समारोह के आयोजन के लिए साधुवाद देता हूं। साथ ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारों और योगदान की समानता को व्याख्या करने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक से मुझे और अन्य सभी पाठकों को लाभान्वित कराने के लिए मैं आयोजकों और यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का भी धन्यवाद करता हूँ। देवियों और सज्जनों, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा लिखित एवं संकलित पुस्तक जिसका आज विमोचन हुआ है, ये अवसर मुझे मिला। मैं इसके लिए आयोजकों का बहुत बहुत आभारी हूँ और विमोचन करते हुए मुझे प्रसन्नता भी हुई। इस पुस्तक के प्रभावशाली संकलन के लिए मैं ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन तथा पुस्तक के प्रकाशक प्रभात प्रकाशन की भी सराहना करता हूँ। इस पुस्तक की भूमिका राज्यसभा सांसद श्री इलैया राजा द्वारा लिखी गई। श्री इलैया राजा की गणना भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय और महानतम संगीतकारों में की जाती है। मुझे आप सबके साथ ये प्रसंग साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इलैया राजा को वर्ष 2018 में राष्ट्रपति भवन में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला था। हम सब जानते हैं कि आज उन्हें इस कार्यक्रम में उपस्थित होना था, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ नहीं पहुँच पाए। देवियों और सज्जनों, इस पुस्तक में बाबा साहब और प्रधानमंत्री मोदी के बहुआयामी विचारों और कार्यों का संकलन है। चाहे औद्योगिक विकास हो, चाहे श्रमिकों के अधिकार, आत्मनिर्भरता, विद्युत व जल संसाधनों का समुचित विकास व उपयोग, शहरों की योजनाबद्ध प्रगति, शिक्षा और जेंडर इक्वालिटी हो, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों के वैचारिक आधारों तथा
ठोस उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में मिलती है। हम सब जानते हैं कि बाबा साहब का व्यक्तित्व तो बहुआयामी था। एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, समाजशास्त्री व समाज सुधारक तो थे ही, उन्होंने अनेक अन्य क्षेत्रों में भी अपना मौलिक योगदान दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ साथ उन्होंने हमारे बैंकिंग, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, लेबर मैनेजमेंट, रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में बाबा साहब ने अपना स्थायी योगदान दिया। और तो और भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी डॉक्टर अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ और प्रयास भी करता हूँ कि मैं ऐसा कोई क्षेत्र ढूंढ पाऊँ कि जिसके बारे में बाबा साहब ने अपना मत, अपना विचार इस देश को न दिया। जीवन का हर क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति से जुड़ा हो, समाज नीति से जुड़ा हो, राष्ट्र की गरिमा और एकता अखंडता से जुड़ा हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस पर कि बाबा साहब ने अपने विचार देश को न दिए हों। देवियों और सज्जनों, इस पुस्तक में 25 चित्र भी दिए गए। ये सभी चित्र बाबा साहब के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की अगाध श्रद्धा का परिचय देते हैं। उदाहरण के लिए उनमें से एक चित्र है जिसमें संविधान तथा उसके प्रमुख शिल्पी बाबा साहब के प्रति मोदी जी की आस्था का जीवंत प्रमाण है। प्रधानमंत्री शायद देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत के संविधान के लागू होने के बाद जो हीरक जयंती वर्ष मनाई गई, उस पर संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया। ये बात है सन 2010 की, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उस कार्यकाल के दौरान बाबा साहब की प्रतिमा स्थली से उस गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। एक सुसज्जित हाथी पर भारतीय संविधान का एक विशाल संस्करण रखा गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। मोदी जी स्वयं आम जनता के साथ पैदल चलते रहे। ये घटना प्रधानमंत्री जी की संविधान व डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अगाध श्रद्धा व सम्मान को दर्शाता है। हम सब जानते हैं कि शहरों के विकास पर बाबा साहब का विशेष जोर रहता था। उसका कारण था, उनका कहना था कि खेती की जमीन पर जनसंख्या का दबाव घटे और शहरों में आधुनिक समाज के विकास से अच्छा बदलाव आ सके। उन्होंने नदियों की घाटियों में बहुउद्देशीय योजनाओं के निर्माण का प्रारूप भी तैयार किया। दामोदर नदी हो या महानदी, उन पर निर्मित स्वाधीन भारत की बहुउद्देशीय योजनाओं तथा वाटरवेज एज पाथवेज फॉर डेवलपमेंट, जिसको कि नरेंद्र मोदी की सरकार उसका चरितार्थ भी कर रही है, बाबा साहब के विजन को ही मोदी सरकार ने कार्य रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ाया। मोदी सरकार अनेक कृषि सुधारों पर भी जोर दे रही है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने जनमानस को बाबा साहब के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। यदि उनमें बाबा साहब के विचारों और आदर्शों के प्रति असीम आस्था न रही होती तो वे बाबा साहब के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को तीर्थ स्थलों की संज्ञा न देते। चाहे महू में उनकी जन्मभूमि हो, नागपुर में दीक्षा भूमि हो, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल हो,
मुंबई में चैत्र भूमि हो या लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम हो, इन सभी स्थलों को पंचतीर्थ का नाम दिया गया। आज लाखों लोग इन तीर्थ स्थलों में जाते हैं और बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की पहल पर ही दिल्ली में अति आधुनिक सुविधाओं से संपन्न आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई। सन 2015 में बाबा साहब के 125वीं जयंती वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर के दिन को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ये हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने की उनकी ऐतिहासिक पहल थी। संविधान दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर ऑफिशियल तौर पर सेलिब्रेट करने की पहल करने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले राजनेता बन गए। देवियों और सज्जनों, बाबा साहब शिक्षा को सर्वाधिक महत्व देते थे। समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों को उन्होंने एक जो मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, इसमें भी हम देखते हैं कि इस मंत्र में भी उन्होंने शिक्षा को ही प्राथमिकता दी है। बचपन से ही अध्ययन के प्रति उनके अनुराग और दिलचस्पी का एक रोचक उदाहरण जो उनके पैतृक गांव आम्बडवे से जुड़ा हुआ है, मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। जिन दिनों बाबा साहब सतारा तथा मुंबई में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनका परिवार प्रायः अपने गांव जाया करता था। शायद जब वे कक्षा 9 की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय उनके एक भाई का विवाह आम्बडवे गांव में ही संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के पश्चात जब परिवार को मुंबई वापस लौटना था, उस समय ये पाया गया कि बाबा साहब, जिन्हें बचपन में भीवा के नाम से भी पुकारा जाता था, वहाँ से वो गायब थे। लोगों ने उन्हें खोजना शुरू किया। तब गांव के किसी व्यक्ति ने बताया कि एक बच्चा मंदिर में बैठकर कोई पुस्तक पढ़ रहा है। बाबा साहब के पिताजी समझ गए कि वो बालक और कोई नहीं, भीवा ही हो सकता है। परिवार के लोगों ने उस मंदिर में जाकर देखा तो पाया कि बाबा साहब पुस्तक पढ़ने में तल्लीन थे। इस घटना से ये पता चलता है कि बाबा साहब को पुस्तकों से कितना प्रेम था। बाबा साहब चाहते थे कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा से लाभान्वित हो। सौभाग्य से मैं ऐसा पहला राष्ट्रपति बन गया जिसे बाबा साहब के गांव जाकर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार का भी प्रयास है कि सबको शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बाबा साहब के विचारों के अनुरूप भारतीयता पर आधारित मातृभाषा में शिक्षा सबको सुलभ हो, यह प्रयास भी किया जा रहा है। वह शिक्षा नीति व्यापक विचार विमर्श, हम सब लोग जानते हैं कि जो 2 लाख से अधिक सुझावों पर इस देश के हर कोने से जो 2 लाख से अधिक सुझाव आए, उन पर आधारित है और उसके पश्चात ये शिक्षा नीति को फार्मूलेट किया गया। देवियों और सज्जनों, इंडियन लेबर पार्टी के संस्थापक के रूप में तथा बाद में वायसराय की काउंसिल के लेबर मेंबर अर्थात श्रम मंत्री के रूप में बाबा साहब मजदूरों के हित में अनेक नीतियों तथा नियमों के प्रणेता रहे। उन्होंने दिन में जो मजदूरों की 12 घंटे की शिफ्ट थी, उसको घटाकर 8 घंटे की शिफ्ट का नियम बनवाया और सप्ताह में श्रमिकों से अधिकतम 48 घंटे तक काम लेने की समय सीमा निर्धारित की। बाबा साहब की सोच के अनुसार ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्रमिकों के हित में अनेक कदम उठाए। उन्होंने अनेक जटिल कानूनों की जगह केवल 4 प्रभावी लेबर कोड जारी करवाए। प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मजदूरों के हित में प्रभावी उपयोग किया। उदाहरण के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की व्यवस्था से हमारे श्रमिक भाई बहनों को देश में कहीं से भी वेतन, प्रोविडेंट फंड आदि की जानकारी
और भुगतान प्राप्त करना सरल हो गया है। इस बदलाव के पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले श्रमिक भाई बहनों को बहुत कठिनाई होती थी और वो थक हार कर अपनी बकाया पगार तक नहीं ले पाते थे। देवियों और सज्जनों, महिलाओं के सशक्तिकरण को बाबा साहब बहुत महत्व देते थे। सन 1942 की एक घटना जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, बाबा साहब के नेतृत्व में एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें लगभग 75,000 प्रतिभागी शामिल थे और 25,000 उसमें महिलाएं थी। आज से 80 वर्ष, हम कल्पना करें, आज से 80 वर्ष पहले महिलाओं की इतनी बड़े पैमाने पर भागीदारी कितनी बड़ी बात हो सकती है। उस समय देश में औसत साक्षरता लगभग 15% ही थी। महिलाओं की साक्षरता तो और भी कम थी। ऐसे समाज में महिलाओं की भागीदारी का जो अद्भुत दृश्य या उदाहरण बाबा साहब ने प्रस्तुत किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी महिलाओं की सुशासन अर्थात गवर्नेंस में, विकास और समाज के हर क्षेत्र में उनको समान और अधिकतम भागीदारी देने का प्रयास कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत के विधि मंत्री के रूप में बाबा साहब ने सन 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया था। ये मैं महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा हूँ। बाबा साहब महिला सशक्तिकरण के प्रति इतने दृढ़ थे कि उन्होंने उस बिल का विरोध होने पर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। अंततः बाबा साहब द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल के आधार पर ही विवाह, महिलाओं के संपत्ति पर उत्तराधिकार से संबंधित अधिनियम लागू किए गए। नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों प्रभावी कदम उठाए हैं और उनकी एक फेहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन मैं उनका कुछ का उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि, किशोरी योजना, उज्ज्वला योजना और सुरक्षित मातृत्व अभियान जैसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनके आधार पर महिलाओं को शिक्षित, स्वस्थ और स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। जन धन योजना, जिसके तहत लगभग 25 करोड़ महिलाओं ने अपने खाते खोलकर आर्थिक समावेश की नई इबारत लिखी है। जन धन योजना के तहत खोले गए आधे से अधिक खाते महिलाओं के हैं। देश के अधिकांश क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में, जिसका अनुराग जी ने विस्तार से चर्चा की, खुले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करने से भी बेटियों और बहनों के जीवन में स्वास्थ्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान की दृष्टि से बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। सरकार के इन सभी प्रयासों से लाभान्वित होने वाली महिलाओं में बहुत बड़ी संख्या उन बेटियों और बहनों की है जो समाज के वंचित वर्गों से आती है। देवियों और सज्जनों, जब मैं राज्यपाल था और उसके पश्चात राष्ट्रपति भी बना, इस दौरान जब मैं विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में जाता था तो मुझे ये देखने को मिलता था कि उच्च स्थान अर्थात मेडल पाने वाले विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या सबसे अधिक होती है। कहीं कहीं तो 100% मेडल बेटियां ही प्राप्त करती हैं। ये सभी बदलाव महिलाओं की भागीदारी और उनके सशक्तिकरण पर बाबा साहब के विचारों को साकार कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत बाबा साहब का एक सपना था। वे अपने संबोधनों में बार बार ये कहा करते थे कि दूसरों की सहायता पर जीना मत सीखो, दूसरों की सहायता पर जीना मत सीखो, स्वयं स्वावलंबी बनो। बाबा साहब के द्वारा दिया गया आत्मनिर्भरता का यह मूल मंत्र जीवन मूल्य व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए उपयोगी है। नरेंद्र मोदी सरकार आज आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अभियान बाबा साहब के इसी जीवन मूल्य को दर्शाता है। युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में चाहे मुद्रा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो या
अनुसूचित वर्गों के उद्यमियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड हो, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का विश्व में ऊंचा स्थान है। $1 बिलियन से अधिक मूल्य के अनेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप भारत के युवाओं ने स्थापित किए। आज यदि रक्षा क्षेत्र की हम बात करें तो उसमें उत्पादन में हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। आज देशवासियों को विश्वास हो गया है कि मोदी सरकार द्वारा उठाए गए ये सभी कदम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होंगे। देवी और सज्जनों, बाबा साहब देश की एकता और अखंडता पर बहुत जोर देते थे। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कश्मीर के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधानों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उसके बाद एक जटिल घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप आर्टिकल 370 का संविधान में समावेश हुआ, जो कि बाबा साहब के विचारों के अनुरूप नहीं था। अंततः मोदी सरकार के प्रयास से अगस्त 2019 में इस विषमता को दूर किया गया। आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के साथ समरूप हो गया है। ये कानून भी बाबा साहब के विचारों को साकार करने वाला कदम है। सौभाग्य से राष्ट्रपति के रूप में मुझे उस ऐतिहासिक आदेश को अनुमोदन प्रदान करने का अवसर भी मिला। देवी और सज्जनों, हम सब लोग जानते हैं कि जिस समय हमारा स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, उसके दौरान भी सांप्रदायिकता का वातावरण बना हुआ था और उस समय देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की दृष्टि से बहुत सारे नेता कहा करते थे कि भाई हम सबको हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए, हमें सबसे पहले कहना चाहिए कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है। लेकिन बाबा साहब की सोच इससे भी ऊंची थी और वो कहते थे कि इसके स्थान पर हमें ये कहना चाहिए कि हम पहले भी भारतीय थे, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। अर्थात सही मायने में भारतीयता ही हमारी पहचान है। इसमें जाति, धर्म, पंथ और संप्रदाय का कोई स्थान नहीं है। नरेंद्र मोदी भी आज इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं और इससे हम समझ सकते हैं कि जो बाबा साहब ने कहा था कि हम पहले भी भारतीय, बाद में भी भारतीय, अंत में भी भारतीय, और आज प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि इंडिया फर्स्ट, ये जो विजन बाबा साहब का था उसी को प्रधानमंत्री मोदी चरितार्थ कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, अंत में मैं यही कहूँगा कि ये जो पुस्तक जिसका आज विमोचन हुआ है, ये पुष्टि करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर अंबेडकर के एक सच्चे अनुयायी हैं। उनके द्वारा बाबा साहब के विचारों के अनुरूप राष्ट्र सर्वोपरि के आदर्श के साथ सुशासन अर्थात गवर्नेंस और सामाजिक मुद्दों से जुड़े अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण करते हुए अपने समतामूलक व सर्वसमावेशी सिद्धांतों को निरंतर कार्य रूप देते रहेंगे। मैं पुनः इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आप सभी महानुभावों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व राष्ट्रपति महोदय। And now I request Dr. L. Murugan, MOS MIV, to propose vote of thanks, please. Sir.
Respected dignitaries, ladies and gentlemen, I stand here to express my vote of thanks to all who made this function a great success. Bharat Ratna Dr. Baba Sahib Ambedkar ji's idea of justice, equality, and inclusive development, his tireless efforts for empowerment of socio-politically marginalized people have been at the core of the idea of Indian Republic. This idea of India strongly reflects in the thoughts and actions of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. The great reformers' idea are the main driving force behind the able performers' implementation. This book truly captures this essence. This book takes you to the past struggles of building of a progressive nation during many trials and tribulations. This book also opens a window to a hopeful future under the Prime Minister leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Ladies and gentlemen, on behalf of the Ministry of Information and Broadcasting, I extend my gratitude to the Honorable dignitaries present on the dais. Our former President of India, Sir Ramnath Kovind ji, has been a great source of inspiration. Thank you, respected Sri Ramnath Kovind ji, for gracing this event and addressing us today. Justice K.G. Balakrishnan ji's contribution in the field of justice and human rights is phenomenal. I thank our former Chief Justice of India, Justice K.G. Balakrishnan ji, for his inspirational words. I would like to thank my senior colleague and Honorable Union Minister of Information and Broadcasting, Sri Anurag Singh Thakur ji, for his dynamic leadership in making this event a huge success. I am indeed thankful to Mr. Hitesh Jain and Bluecraft Digital Foundation for giving performance through this inspiring book to the success and stories of the two icons who dreamed big for India and succeeds against all odds. I extend my sincere thanks to Honorable elected representatives of the Parliament of State Legislative Assembly, these esteemed Vice Chancellors and academicians, accomplished sportspersons, dignitaries from the field of cinema, art and culture, secretaries and senior officials of the Government of India who are present here with us today. My heartfelt thanks and gratitude to the writers, editors, and publishers for putting this book together. I would like to convey my thanks to the eminent guests and media for being here in such large numbers as our pillars of support. My thanks to my team of Information and Broadcasting, Prasar Bharati, and the Central Bureau of Communication for their efforts and assistance for making this event successful. I also express my gratitude to Nehru Memorial Museum and Library for their support. Thank you all once again. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Bhim. Thank you very much, sir. And ladies and gentlemen, please rise for National Anthem. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Ladies and gentlemen, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Please join us for a cup of coffee at High Tea. Thank you.
भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसी